Hello students. Today we are going to start off with the topic P block elements. अच्छा, in this topic of P block elements हम लोग group 15, 16, 17 and 18 पढ़ेंगे. Let's start off with group 15, that is the first nitrogen family. अच्छा, if you notice about nitrogen family या group 15 में कौन कौन से elements आते हैं, then the elements which occur in group 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nitrogen symbol is N, phosphorus का symbol is P, arsenic is AS, antimony is SB and bismuth is BI. Okay, चलो आगे देखते हैं. Let's start off with the occurrence. If you notice, occurrence of nitrogen is metal or non-metal? Then it's a non-metal. Talking about phosphorus, even that is a non-metal. Further, if you talk about arsenic is a metalloid. Antimony is also a metalloid. And finally, bismuth के बारे में अगर बात करेंगे तो bismuth is a poor metal. याद रखना, you need to specify poor metal. अगर सिर्फ metal लिखोगे तो wrong मिलेगा. Further, अगर बात की जाए तो सर nitrogen, if you notice, in nature nitrogen exists as N2. Similarly, phosphorus कैसे exist करता है? Phosphorus exists as P4. Talking about arsenic and antimony, both arsenic and antimony exist as AS4 and SB4. And finally, bismuth बेचारा अकेला रहता है as monoatomic state. Further, let's talk about the atomic sizes. Now, talking about the atomic sizes, nitrogen 65 picometers. Next आता है phosphorus, which is 195 picometers. Further, arsenic 185 picometers. Then comes antimony with 206 picometers. And finally, bismuth with 230 picometers. Okay, if you notice, check करो atomic size क्या हो रहा है. From top towards the bottom, that is from moving down the group, what is happening to the atomic size? Atomic size is going on increasing. So यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं that atomic size increases from nitrogen towards bismuth. Further, चलो atomic size तो हो गया. Let's talk about allotropes. Okay, now first thing, allotropes मतलब क्या? Allotropes means the same element existing in many different morphological forms. Meaning, अगर हम लोग best example of allotrope देखें तो कार्बन कैन एग्जिस्ट एज डायमंड, वो एग्जिस्ट करता है एज ग्राफाइट. इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज फिलरीन. ओके, सो ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फिलरीन हो गया. दीज आर नथिंग बट व्हाट? दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. सिमिलरली, अगर एलोट्रोप्स ऑफ ग्रुप 15 की बात की जाए तो नाइट्रोजन डजंट शो यू एनी एलोट्रोप. प्लीज रिमेंबर दिस, नाइट्रोजन कोई भी एलोट्रोप नहीं है. फॉस्फोरस 3 एलोट्रोप्स, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक. Further, arsenic gives you again 3 allotropes, yellow, grey and black. Talking about antimony gives you 2 allotropes, silvery white and grey. Finally, talking about bismuth doesn't give you any allotropes. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, why don't they give allotropes? Then let's understand a very simple statement over here, or let's try to understand the reason कि नाइट्रोजन एंड बिस्मथ क्यों नहीं दिखाते एलोट्रोप्स. देखते हैं. अच्छा, एलोट्रोप्स बनने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू गेट इज आई वुड रिक्वायर बॉन्ड्स विद इन द सेम एलिमेंट. मेरा सेम एलिमेंट या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एक साथ बाइंड होने चाहिए. टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग बिस्मथ के बारे में बात करेंगे तो बिस्मथ बाइंडिंग विद बिस्मथ. नाउ ओवर हियर बिस्मथ का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड बिकॉज बिस्मथ का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, व्हाट वुड हैपन? दिस बॉन्ड कैन बी ईजिली ब्रोकन. बहुत ईजिली टूट जाएगा ये बॉन्ड. एंड अगर बॉन्ड ईजिली टूट रहा है तो ऑब्वियसली बिस्मथ कैन नॉट मेक अ बॉन्ड विद बिस्मथ. एंड अगर बिस्मथ का बॉन्ड नहीं बन पा रहा है तो डेफिनेटली तुम लोग क्या बोलोगे फिर? तो डेफिनेटली वी वुड से कि हाँ, बिस्मथ cannot give you allotropes. Q? Because bismuth can't combine with itself to make allotropes at the first place. Clear? No problem with this. Further, let's talk about nitrogen. But first of all, bismuth, why doesn't it show you allotropes? Because bismuth has a very huge atomic size.
huge atomic size, and because of this huge atomic size क्या होगा सर, बिस्मथ एंड बिस्मथ का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक होगा. द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वुड बी वेरी स्मॉल, बहुत कम एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने के लिए. ओके, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, नाउ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बन पाता, अनस्टेबल. नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वो भी अनस्टेबल है. सो व्हाट इज स्टेबल? सिर्फ एक ही बॉन्ड स्टेबल है, दैट इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. मतलब कैन आई से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर स्टेबल है तो नाइट्रोजन हमेशा क्या बनाने की कोशिश करेगा? ही विल ऑलवेज प्रेफर टू गो विद ट्रिपल बॉन्ड. एंड अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक ही तरीके का बॉन्ड बना सकता है तो डेफिनेटली ही कुडंट शो यू एलोट्रोप्स, क्योंकि एलोट्रोप्स दिखाने के लिए तुम्हें अलग अलग वैरायटी के बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे. ओके, जैसे कार्बन है, कार्बन कैन मेक sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट कैन मेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट कैन मेक sp हाइब्रिडाइजेशन, बट नाइट्रोजन सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन ही प्रेफर करेगा. सो ओवर हियर वी कैन सिंपली से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ओनली प्रेफर्स sp hybridization. ओके, फर्दर लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं. एलोट्रोप्स तो हो गए, चलो नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी ना, नाइट्रोजन कम्स विद अ डेंसिटी ऑफ 1.25 grams per liter. नेक्स्ट 2.52 grams per liter for phosphorus. अच्छा, arsenic the density is 5778 grams per liter. फर्दर एंटीमनी अगर चेक करोगे इज 6684 grams per liter, and finally bismuth is just above 10,000. ओके, सो इन डेंसिटी हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? चेक करो. कैन आई से मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टूवर्ड्स बिस्मथ माई डेंसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. एंड ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसका रीजन भी देख लेते हैं. ओके, ये क्यों हो रहा है? So because density depends upon what? Firstly, what we know is density rho is nothing but mass over volume. And as the mass goes on increasing, what would happen? So even the density will go on increasing. Okay, so as we are moving down from nitrogen towards bismuth, atomic mass increase हो रहा है ना, एंड अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी इंक्रीज होगा. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एज वी आर मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स बिस्मथ, वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी शुड डिक्रीज, राइट? बट देन प्लीज रिमेंबर डेंसिटी मोस्टली डिपेंड्स अपॉन मास. ओके, इफ योर मास इज सेम then you would check with volume, otherwise you won't check with volume. Like for example, if I happen to ask you that Na positive and Na, who would have larger density? Now check, sir, Na positive atomic mass number is 23, Na sodium is also atomic mass number 23, मतलब दोनों का atomic mass same है. अगर एटॉमिक मास सेम आया देन यू चेक विथ वॉल्यूम. Na पॉजिटिव में यू ओनली हैव 2 शेल्स, whereas Na में यू हैव 3 शेल्स. तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, 2 शेल का या 3 शेल का? ऑब्वियसली 3 शेल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, एंड अगर 3 शेल का वॉल्यूम इज मोर देयरफॉर डेंसिटी वुड बी लेस. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर डेंसिटी मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर who would determine density is your mass, it's not the volume. Okay, चलो आगे देखते हैं. Let's see, let's talk about the melting point. Okay, now this is very very important. ठीक है, ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा. melting point की अगर बात की जाए ना, let's see. So nitrogen comes in with a melting point of -210 degree Celsius. Further, phosphorus is 44 degree Celsius, positive बन गया. Next, arsenic is 817 degree Celsius. मतलब अभी तक from nitrogen towards arsenic your melting point is increasing. Perfect, कोई दिक्कत नहीं है. चलो आगे देखते हैं. Further, so if we talk about antimony, now what is going to happen? Antimony melting point हो गया 630, मतलब from 817 तुम 630 पे आ गए, melting point decrease हुआ. So from 630 if you talk about bismuth, the melting point is decreasing further. That means, can I say for melting point of group 15 elements, I am talking about elements, अगर elements की बात की जाए तो melting point increases up till arsenic. arsenic के बाद ये decrease होना start होता है. No problem with this. Please
रिमेंबर मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट नाउ। ओके, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? Nitrogen comes in with a boiling point of minus 195.8 degrees Celsius. Further, if you talk about phosphorus, 280. Next, if you talk about arsenic, it comes in with 613 degrees Celsius, obviously. Antimony comes in with 1587 degrees Celsius. And finally, bismuth is 1564 degrees Celsius. Over here, what we can say कि boiling point usually just increases down the group. हाँ, बिस्मथ के लिए थोड़ा सा कम हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तुम इमेजिन करो 1587, 1564, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड यू कैन सिंपली से एक जनरल स्टेटमेंट कि हाँ, बॉइलिंग पॉइंट एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग। दैट्स इट, एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। वी ऑलरेडी नो आउट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मथ, चेक करो अकरेंस में हम लोग ने बोल दिया है ना कि नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल है एंड नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, सो नाइट्रोजन ओवर हियर कम्स इन विद अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3। ध्यान देना, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिंग स्केल। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ने डिटरमाइन की है, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिटरमाइंड बाय पॉलिंग स्केल एंड नॉट बाय म्यूलिकन स्केल। ओके, दो स्केल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए, एक होता है पॉलिंग, दूसरा होता है म्यूलिकन। हम लोग यूजुअली पॉलिंग स्केल फॉलो करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो नाइट्रोजन हो गया 3, उसके बाद फॉस्फोरस इज 2.19। फर्दर नेक्स्ट वन दैट इज आर्सेनिक 2.18, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक करो। Further, antimony is 2.05. Next comes is bismuth with 2.2. So if you notice, bismuth has a very small electronegativity difference as compared to antimony. Okay, and therefore हम लोग bismuth को क्या बोलते हैं? We don't call it as metalloid. Rather, we prefer to call it as a pure metal. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। So this was a generalized statement or generalized table about group 15. एक और क्राइटेरिया बाकी है ग्रुप 15 का, पहले वो फिनिश करते हैं एंड देन विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस। सो लेट्स सी, द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, चेक करो कौन से 2 पॉइंट्स। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर ना, नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली p-pi bonds, whereas phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, all of them can form p-pi as well as p-pi-d-pi. ओके, चेक करते हैं, एक मिनट, होता क्या है ये देख लो। इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, लेट्स सपोज वी स्टार्ट विद नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से, सर N ट्रिपल बॉन्ड N में ना 2 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होंगे एंड 1 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन electronic configuration, then the electronic configuration of nitrogen comes out to be 1s2, 2s2 and 2p3. Okay, that's it, no problem with this. Let's understand one more thing over here. एक चीज नोटिस करने लायक है, देखो सर, नाइट्रोजन cannot expand his octet. So what would happen? Listen carefully. Nitrogen needs to make 3 bonds. Perfect. Okay. And if we check, sir, nitrogen outermost shell configuration, अगर orbital diagram बनाया जाए, so it would be 2s. So s has only 1 room. That's fine. And p has 3 rooms. Okay. Sir, s में कितने electrons है? S में you have 2 electrons. So let's mark it with different color over here. So s has 2 electrons. एंड P हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तीनों के तीनों अनपेयर्ड रहेंगे, है ना? नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द केस विथ 1 नाइट्रोजन। अब जो दूसरा नाइट्रोजन होगा उसमें भी तो ये सेम ही होगा ना, दोनों नाइट्रोजन तो सेम ही होंगे। ओके, तो जो एक काम कर लेते हैं, हम लोग दोनों नाइट्रोजन बना देते हैं यार, क्या दिक्कत है? चलो चेक करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड नाइट्रोजन एटम, सर अगेन द सेकेंड नाइट्रोजन एटम वुड हैव 2s, s का 1 रूम, p के 3 रूम्स। ओके, now check करो सर, out of S there is no, in S there is no unpaired electron, so over here you would get 2 electrons and P में you will have 3 unpaired electrons. Okay, अच्छा अब मुझे बताओ, चेक करो, P में you have 3 unpaired electrons, मतलब 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है।
राइट. एंड व्हेनेवर यू हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन्स विल दे फॉर्म बॉन्ड्स? एब्सोल्युटली यस. अब चेक करो सर, हमें 3 बॉन्ड्स बनाने हैं जिसमें से 2 बॉन्ड्स होंगे पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड. मीनिंग नाउ कैन आई से सर आउट ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एटम्स, मतलब ये फर्स्ट वाला वुड बी यूज फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड. लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वुड दे बी यूज्ड for making pi bonds? Then absolutely yes, they would be made or they would be used for making pi bonds. And भाई अगर ये pi bonds बनाने के काम आ रहे हैं, that means can I say सब first nitrogen उसका p orbital, second nitrogen उसका भी p orbital are combining to give you pi bond, and therefore these pi bonds can you refer them as p pi bonds? Yes, absolutely right. प्लीज रिमेंबर नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, एंड अगर नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है ही कुडंट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ही वुड ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स. कर पाएंगे इतना? ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स ट्राई ऑन विद द नेक्स्ट वन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पी पाई डी पाई. ओके, सो ओके, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट POCl3. लेट मी जस्ट राइट डाउन द कंपाउंड फॉर यू. सो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है POCl3, POCl3, the structure is something like this. Okay, hey, the first thing to notice over here, phosphorus is making how many bonds? So phosphorus is making total of 5 bonds. Out of those 5 bonds, what we need to remember? We need to remember, sir, इसमें ना 4 bonds जो है वो है sigma bond, and 1 bond जो है वो है pi bond. So we have 4 sigma bonds and 1 pi bond. Okay, fine. That's absolutely right. So let's talk about phosphorus electronic configuration. So phosphorus has an atomic number of 15. So phosphorus 15 gives you the electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0. Okay, now check what is going to happen. So सबसे पहले अगर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहा है मतलब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ओके, डू यू अग्री विथ मी? सो लेट्स ट्राई. फाइन. सो व्हाट वुड हैपन? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s orbital jumps into the d orbital. Why? So because hybridization can occur within the orbitals of the same shell. 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इफ दिस हैपन्स देन phosphorus का excited state, phosphorus excited state would be something like this: 3s1, 3p3, 3d1. ओके, दिस इज फॉर फॉस्फोरस. चलो ऑक्सीजन का भी करके देखते हैं, बिकॉज हम लोग फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन में बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो वो भी करके देखते हैं. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, लेट्स टॉक अबाउट इट ओवर हियर. ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर 8. Electronic configuration would come out as 1s2, 2s2 and 2p4. So from the oxygen electronic configuration हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा. ओके, नाउ इज ऑक्सीजन मेकिंग 2 बॉन्ड्स? एब्सोल्युटली यस, 2 बॉन्ड तो बना रहा है वो. उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है. अब चेक करो. सो द वेरी फर्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज s and p के इलेक्ट्रॉन्स, these 4 electrons would be used for making 4 sigma bonds. Okay, अब देखो pi bond के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है. कौन से ऑर्बिटल में? सर नाउ दिस इज रिमेनिंग इनटू विच ऑर्बिटल? इट इज रिमेनिंग ओनली इनटू द d ऑर्बिटल. नाउ कैन आई से दैट इफ फॉस्फोरस वांट्स टू मेक अ pi bond with oxygen, अगर फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ pi bond बनाना है, देन सर फॉस्फोरस को अपना d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन अपने p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एंड देयरफॉर कैन आई से द बॉन्ड दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, दैट इज अ pi bond between phosphorus and oxygen in POCl3 is p pi d pi bond. ऑक्सीजन ने अपना p ऑर्बिटल यूज किया,
फॉस्फोरस ने अपना डी ऑर्बिटल यूज किया एंड देयरफॉर दिस बॉन्ड वुड बी रिफर्ड एज पी पाई डी पाई बॉन्ड। अच्छा, ये क्यों हो पाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसलिए हो पाया था बिकॉज फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। नाइट्रोजन ही couldn't give you p pi d pi bonds. The only reason for that, he cannot expand his octet. ओके, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है। प्लीज ध्यान से देख लेना, नाइट्रोजन सिर्फ p pi bonds बना सकता है। Phosphorus can make p pi, या rather all the other elements of group 15. They can make p pi. They can also make p pi d pi. They can also make d pi. ओके, d pi वाला एग्जाम्पल ना हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मॉड्यूल में वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 15।